Hello everyone and very good afternoon to you. Welcome to our seminar which is on product designing. Today we are going to tell you about the product designing. So let us talk about product first. What is a product? I mean, everything is a product, like your cosmetics, any kind of a gel, or your toothpaste, your moisturizer, your keyboards, your computers, your notebook, whatever. Everything is product here in this world. So you have to do the packaging of it, and it has to be attractive because अगर रैपर अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई चॉकलेट लेना प्रेफर नहीं करेगा तो तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना इम्पोर्टेंट होता है और आज का जो सेमिनार है वी आर गोइंग टू टेल यू how important it is to design it in a very good way. What are the software being used in that product designing, and what are the scopes? Because it's not about only we are going to design it and hand it over to the clients, but there are you can earn quite a lot by this. There are few courses also in for this product designing where you can pursue. See, product designing, sir will tell you about the scopes of it and what are the softwares being used and how lighting is provided and the designing of the materials. The whatever we design, we do design the packaging, the mono cartons and all. We do design the packaging of it, but then you have to design according to the paper size of it and according to the material being used in the product, like whatever that would be cardboard or what kind of product that is. So we are going to tell you everything about it. So let me introduce you to our team, that is Neha ma'am. Neha ma'am has already interacted with you guys who are welcoming you, and Srishti ma'am, who is going to tell you about few things of our institutes later at the end of this session, and Ankit sir, who is going to handle the technical chorus. If you guys have any kind of questions, you guys can write it on the chat box. And our today's expert, that is Shivendra sir, who is going to tell you everything about the product designing. So, without any further delay, let us start this. Myself Shivendra Sahu, I am a faculty at MAC Raipur, and I will be taking your seminar on product design. Okay, so यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सबने ही प्रोडक्ट डिजाइन देखा है. ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, बिकॉज हमारे घर पे बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं लाइक कॉस्मेटिक, मेडिकल और यू कैन से ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स. ऑलमोस्ट हर एक नई चीज जो हम मार्केट से लेके आते हैं वो प्रोडक्ट ही है. एंड देन वो जो चीजें देखते हैं उसमें जो डिजाइन होते हैं वो ऑलमोस्ट ही प्रोडक्ट डिजाइन वही है. ठीक है, सो आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइन के बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन पे क्या क्या सॉफ्टवेयर लगते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मेन जो आपका पॉइंट होता है कि सर इस पे पैसे है क्या इस मार्केट में. ये जरूर मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा कि इसमें इस फील्ड में क्या फ्यूचर है, क्या इसके प्राइसिंग होते हैं और जो भी चीजें हैं. सो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ओके, प्रोडक्ट डिजाइन आपके लिए लाइक हर एक सेक्टर पे एग्जिस्ट करता है, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, स्टेशनरी सेक्टर, और एल्स जो भी चीजें हम मार्केट से, एज आई टोल्ड यू अबाउट दैट, जो भी चीजें मार्केट से नहीं आती है वहां पे वो प्रोडक्ट डिजाइन एग्जिस्ट करता है. अब प्रोडक्ट डिजाइन पे कुछ टेक्निकल चीजें भी लगती है और कुछ क्रिएटिव चीजें भी लगती है जो आप लगाते हैं. ओके, सो अब मैं कुछ टर्म लेता हूँ. डिजाइन विजुअलाइजेशन बेनिफिट्स. ओके, प्रोडक्ट डिजाइन विजुअलाइजेशन बेनिफिट्स, ये क्यों जरूरी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है करना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है मेरे पास, मैं आपके लिए कुछ पीडीएफ रखा हूँ, देन आपको कुछ बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन बनता है, कैसे दिखेगा इन फाइनल कॉम. जो भी आपकी क्वेरीज होंगे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं लास्ट में वो चीजें जरूर मैं आंसर करूंगा. ओके, सो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन आपके जो मार्केट का टाइम होता है, लाइक जब प्रोडक्ट बनता है तो पहले स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टार्ट होता है, कोई कंसेप्ट रेडी करता है, देन उसके बाद वो फाइनल आउटपुट लाने तक के एक पूरा प्रोडक्ट का प्रोसीजर होता है. बट वहां पे एक टाइम होता है, टाइम एंड कॉस्ट, दो चीजें होती है. कॉमर्स वाले लोग को उनको बहुत अच्छे से पता होगा टाइम और कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे डिजाइन बनाने से, अगर मैं डिजाइन पहले से विजुअलाइज कर लेता हूँ 3D पे कि कैसे दिखने वाला है मेरा प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली मैं मार्केट का टाइम बचा सकता हूँ, खुद का टाइम बचा सकता हूँ, अपने खुद के मनीज बचा सकता हूँ. बिकॉज ऑफ कोर्स बात है कि कुछ किसी का स्टार्टअप हो सकता है या
कोई भी चीजें हो सकती है, ऑब्वियसली वहां पे पैसे लगते हैं। सो मैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन से पहले ही, वो प्रोडक्ट को पहले से विजुअलाइज करने से मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, और मैं कस्टमर के फीडबैक गेन कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे एट लास्ट वो क्लाइंट को ही मुझे बेचना है या सेल करना है। सो मैं यहाँ पे अपने कस्टमर को लुभा सकता हूँ कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसा आपका प्रोडक्ट दिखने वाला है, और जो भी चीजें टेक्निकल क्वेरीज, यू कैन से टेक्निकल कह सकते हो, फिजिकल क्वेरीज जो भी होती है, वो चीजें मैं क्लियर कर सकता हूँ प्रोडक्ट डिजाइन से। ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, ये जरूर बताऊंगा, बट मेन जो मेरा आज का मोटिव रहेगा कि यहाँ पे इस फील्ड में क्या स्कोप है आपके लिए, जो कितना वास्ट है इसके लिए फ्यूचर, वो मुझे बेसिक जरूरी बताता है। ओके, सो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ कि प्रोडक्ट डिजाइन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर लगते हैं, देन अब वी विल चेक आउट कि प्रोडक्ट डिजाइन किस में होता है, कैसे होता है, और कैसे एक फाइनल आउटपुट निकलता है। जनरल विजुअलाइजेशन वो होता है जब हम कोई प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, मैं एक फेयर एंड वन का एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज आपको मैं वो चीज दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक जनरल विजुअलाइजेशन के बारे में बात करूं, तो एक मेरा प्रोडक्ट दिखने कैसे वाला है, लाइक जब वो मार्केट में मेरे पास आएगा तो वो दिखेगा कैसे, लाइक उसके कार्टून, मोनो कार्टून जैसे कैसे होंगे, और वो उसके ट्यूब्स कैसे होंगे, उसमें साइज क्या होगी, वो सारे के सारे विजुअलाइजेशन हमारे पेपर में जरूर होते हैं, बट आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो कुछ डिजाइन फोटोशॉप में क्रिएट होते हैं, स्केचअप में भी क्रिएट होते हैं, ऑटो कैड में भी होते हैं, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ एंड इन डिजाइन। ओके, एंड देन वो जाता है रियल टाइम विजुअलाइजेशन के अंदर पे। ठीक है, रियल टाइम विजुअलाइजेशन इन द सेंस कि मैं रियल पे वो चीज कैसे नजर आएगी, तो उसके लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ उस पे, 3ds मैक्स प्लस वी रे। ओके, एंड देन उसके बाद एडवांस विजुअलाइजेशन आता है वहां पे, जहां पे उसमें मैं स्पेशल इफेक्ट्स ऐड करता हूँ, लाइक आप देखते हो कि प्रोडक्ट रियल पे उतना शाइन नहीं कर रहा होता है, बट वो विजुअलाइज जब पोस्टर्स आते हैं तो काफी शाइन नजर आता है, बिकॉज उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स लगे होते हैं, बिकॉज एट लास्ट मुझे क्लाइंट को डील करना होता है या क्लाइंट को अप्रूव करवाना होता है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वहां पे, लाइक 3ds मैक्स, माया एंड रियल फ्लो। ओके, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं प्रोडक्ट 2D पे डिजाइन करता हूँ, बिकॉज हमें 2D पे पहले डिजाइन करना होता है, तो मैं वहां पे आपके ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं, लोगो कहाँ पे प्लेसिंग होगा, ठीक है, वो दिखने कैसे वाला है, उसके डायमेंशंस कैसे होंगे, उसमें लेबल्स कहाँ पे लगे होंगे, वो सारी चीजें मैं एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, ये दो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर्स के, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बट मेन जो सॉफ्टवेयर्स हैं एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इस पे मैं उसके ग्राफिक्स क्रिएट करता हूँ। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि वो चीजें विजुअलाइज कैसे होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कि मैं एक कार्टून बनाना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोनो कार्टून है, तो मोनो कार्टून का 2D विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, और ये उसका ग्लू वाला सेक्शन है, बिकॉज ग्लू वाला सेक्शन एट लास्ट वो कुछ ऐसे जाके स्टिक होता है। ठीक है, सो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन इन 2D पे मैं एक 2D विजुअलाइज करता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट दिखने कैसे वाला है, ये जो मैंने सर्कल अपॉइंट किया, यहाँ पे मेरे लोगो लगे होंगे, और जो भी ग्राफिक्स रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे यहाँ ऐड होंगे। ओके, देन यहाँ पे मैं उसके ग्राफिक्स क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, जहाँ पे मैं आप देख सकते हो, जूम कर लेता हूँ। ओके, सो आई कैन डिजाइन दोस ग्राफिक्स इन द फोटोशॉप, लाइक लोगो, लेबल्स एंड कलर स्कीम्स, और बहुत सारी चीजें होती है जो फोटोशॉप पे पहले से 2D विजुअलाइज कर देती है। ये करने से मेरा टाइम बचता है, मेरे कॉस्ट बचते हैं, मेरे मटेरियल्स बचते हैं। ठीक है, जब मैं 2D पे उसे विजुअलाइज कर लेता हूँ एक फाइनल, देन एक 3D विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, लाइक जब मैं 3D मॉडल कंप्लीट क्रिएट कर लेता हूँ तो 3D विजुअलाइज होता है उसका। उसके बाद मैं अपने मॉडल पे मटेरियल देखता हूँ कि मेरे मॉडल का मटेरियल कैसे होना है, बिकॉज हो सकता है कि मेरा जो मॉडल है वो प्लास्टिक का हो सकता है मेरा मॉडल स्टील का हो, रबर का हो, लेदर का हो, और else जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं सबके सरफेसेस अलग होते हैं। सो मुझे मटेरियल डिसाइड करने पड़ेंगे,
और मैं उसके लिए मटेरियल गैलरी यूज करता हूँ। मैं आपके पास एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट लाइक आप गूगल पे लिख सकते हो सरफेस मटेरियल गैलरी, तो कुछ ऐसा मटेरियल गैलरी आपको नजर आएगा, ठीक है, जो शेडर्स होते हैं बेसिकली। ऐसे मैं यहाँ पे अपना मटेरियल डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा मटेरियल होने कैसे वाला है, लाइक उसमें शाइनीनेस कैसे होगी, उस पे वो टेक्सचर कैसे होगा, रफ होगा, स्मूथ होगा। जनरल टर्म पे बात करूं तो वो कितना चमकने वाला है या कितना कैसे दिखेगा वो एक्चुअल पे, ठीक है। सो मैं अपने गूगल इमेजेस में चेकआउट कर सकता हूँ कि उसका मटेरियल कैसे होंगे, उसके सरफेस कैसे दिखने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डेमो बनाया है, ठीक है, वो लेदर का है तो ऑब्वियसली शाइन नहीं करेगा, तो मैंने एक डेमो क्रिएट किया है। ये उसका 2D विजुअलाइजेशन था, ये उसका मटेरियल का विजुअलाइजेशन था। ओके, सो देन आई विल बिल्ड अ सीन इन 3ds Max एंड माया। ओके, मैं यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ मॉडलिंग करने के लिए, ठीक है। सो ओके, सो अब यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। 3ds Max एंड माया पे मैं क्या करता हूँ, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल करता हूँ कोई भी चीज को। मॉडल करके लाइक एग्जांपल मुझे ट्यूब बनाना था, जैसे ये मेरा कुछ आउटपुट रहेगा। सो मैं इसे मॉडल करके दिखाता हूँ आपको कि ये मॉडलिंग कैसे होती है, एक बेसिक सी मॉडल, ठीक है। सो 3D विजुअलाइजेशन के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मॉडलिंग। पहला जो स्टेप होता है जब अपन मैक्स माया यूज करते होते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे मॉडलिंग बहुत जरूरी होती है मेरे मॉडल को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो मैं एक सिंपल बहुत ही बेसिक सा मॉडल यहाँ पे क्रिएट करूंगा आपके लिए। फाइन। सो मैंने कुछ एक क्यूब क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक 3D मैंने मॉडल क्रिएट कर रहा है, एंड देन आई विल ऐड सम टेक्सचर्स। लाइक टेक्सचर्स कैसे होंगे, ठीक है, मैं आपको टेक्सचरिंग दिखा देता हूँ। जो टेक्सचर्स होते हैं वो कैसे नजर आते हैं, वो मैं फोटोशॉप पे क्रिएट करता हूँ बेसिकली, बिकॉज मॉडलिंग के बाद उसकी टेक्सचरिंग होती है, ठीक है। टेक्सचरिंग कुछ ऐसा टेक्सचर्स होते हैं जो उसके मैं बात करूँ तो टेक्सचर कुछ ऐसे नजर आएंगे, बिकॉज एक पूरा स्टेप होता है टेक्सचर मॉडलिंग, लाइटिंग एंड टेक्सचरिंग का। सो मिडिल वाला जो सेक्शन है वो टेक्सचरिंग है, जहाँ पे मैं अपने मॉडल पे 3D मॉडल पे लोगो असाइन करता हूँ, लेबल असाइन करता हूँ, उसके कलर्स असाइन करता हूँ, उसके पेंट असाइन करता हूँ, ठीक है। एंड देन मॉडल करने के बाद होता है वहां पे लाइटिंग, ठीक है। वहां पे मैं 3D जो सॉफ्टवेयर है माया, उस पे मैं लाइटिंग करता हूँ। लाइक आप जनरली लाइटिंग के बारे में जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। बहुत सारे टाइप्स के लाइटिंग आते हैं, लाइक 2 पॉइंट लाइट सेटअप, 3 पॉइंट लाइट सेटअप, स्टूडियो सेटअप्स, 1 पॉइंट लाइट सेटअप, ऐसे बहुत सारे लाइटिंग सेटअप्स आते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है या कहीं सुने नहीं है, हमने कहीं देखा नहीं है। ऑब्वियसली हमारे घर पे जो लाइटिंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी का ही पार्ट है। ये 1 पॉइंट लाइट हो सकता है, 2 पॉइंट लाइट हो सकता है, और 3 पॉइंट लाइट भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था मॉडलिंग करने के लिए और टेक्सचरिंग करने के लिए। सो लेट मी ओपन दैट। ओके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट लाइट सेटअप क्रिएट किया है मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर पे, और आप देख सकते हैं टेक्सचरिंग मैंने कुछ ऐसी की है कि यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा लोगो कहाँ पे रहेगा, मेरे लेबल्स कहाँ पे रहेंगे। और एग्जांपल देखो, लेबल मैंने किया है, देन उसके मैंने बॉक्सेस क्रिएट किए हैं कि वो बॉक्स कैसे दिखने वाला है, ठीक है। वो जब क्लाइंट के पास जाएगा तो जो क्लाइंट बाय करने वाला होगा, लाइक होलसेल डीलर है, शॉपकीपर है, जो भी है, नॉर्मल कस्टमर्स की बात करता हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट दिखने कैसे वाला, लाइक उसका कार्टून्स कैसे होंगे, उसके ट्यूब्स कैसे होंगे। तो मैं पूरा 3D मॉडल करके उसे टेक्सचर करता हूँ, और वो भी जो भी स्पेसिफाइड ग्राफिक्स होते हैं वहां पे मैं असाइन करता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे एक 3 पॉइंट लाइट सेटअप क्रिएट किया हूँ, ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो विजुअलाइज कैसे होने वाला है, दिखने कैसे वाला है, ऑब्वियसली उसे लिट करने के लिए। सो एंड देन हमारे पास मैं पीडीएफ ऑन करता हूँ, ओके, ठीक है। सो इतना करने के बाद मैं फाइनल में क्या करता हूँ, मैं रेंडर निकालता हूँ, एंड देन रेंडर निकालने के बाद उसमें एक फाइनल कॉम्पोजिशन क्रिएट करता हूँ कि मेरा आउटपुट दिखेगा कैसे यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली है कि मैं कोई भी चीजें बनाता हूँ, जब तक कि उसमें फाइनल टचेस नहीं होते तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि 3D मॉडल जो मैंने क्रिएट किया था आपके लिए, एंड देन उसमें टेक्सचर किया, देन लाइट किया, वो दिख रहा कैसा है। ओके, सो एज आई मैंने आपको कहा जो मेरे पीडीएफ पे था कि विजुअलाइजेशन, रियल टाइम विजुअलाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे माया और आर्नोल्ड
सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, जहां पे मैं रियल टाइम विजुअलाइजेशन चेक कर सकता हूँ. ओके. ओके, इट टेक्स टाइम बिकॉज रेंडरिंग बहुत टाइम लेता होता है कि मशीन रेंडर करता होता है. ठीक है, सो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होता है रेंडरिंग का पार्ट. हो सकता है कि मेरा रेंडरिंग का टाइम एक दिन भी ले लेता है, कभी 2 दिन भी चले जाता है. तो रेंडरिंग टेक्स टाइम, तो मैं यहाँ पे रियल टाइम विजुअलाइजेशन करता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा जो मॉडल है वो कैसे दिखेगा या मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखने वाला है. एंड देन मैं मेरा जो फाइनल आउटपुट निकला वो कुछ ऐसा निकला वहां पे. Wait. Okay, then this was my final output of that 3D model, and then I have added some foley to and into that scene like cloth you can say. And then मैं इसे फाइनल कॉम की तरफ लेके जाता हूँ कि मेरा मॉडल दिखेगा कैसे अब. ठीक है, बिकॉज फाइनल कंपोजिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है. या कंपोजिटिंग में बात करूँ तो टचअप्स देना, एडिटिंग करना या कलर्स ऐड करना उसमें. ठीक है, और लाइक पोस्टर जब क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी डिटेल्स ऐड करते हैं वहां पे. सो वेट. ओके, सो मेरा कुछ फाइनल कॉम्प यहाँ पे कुछ ऐसा है. ठीक है, जहां पे मैंने एक बेसिक मैं बात करता हूँ. वेट. ठीक है, सो मेरा आउटपुट कैसा ऐसा ऐसा था जब फोटोशॉप पे मैंने लेके आया. देन मैंने उसमें बैकग्राउंड ऐड किया. बैकग्राउंड ऐड करने के बाद थोड़े से इफेक्ट्स ऐड किए, लाइक लाइटिंग बहुत जरूरी है मेरे सेक्शन पे. देन मैंने कुछ फिल्टर्स ऐड किए यहाँ पे कि मेरा प्रोडक्ट और अच्छा दिखना चाहिए. देन फाइनल पे मैंने उस पर ब्रांडिंग और उसका जो लोगो ब्रांड है वो मैंने असाइन किया एंड डिटेल ऐड करके मैं अपने क्लाइंट को डिलीवर करने के लिए मैं यहाँ पे रेडी हो जाता हूँ. सो ये एक क्विक डेमो था आपके लिए कि प्रोडक्ट डिजाइन कैसे होता है. ठीक है, सो आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं लास्ट में जरूर हैंडल करूंगा. ठीक है, जो भी सेक्शन रहेगा. ओके, अब मूव ऑन करते हैं मेरे पीडीएफ पे कि मेरे पास है कि ये हमारे इंडस्ट्री पे कितना कॉस्ट करता है, क्या है इसकी कॉस्टिंग, मार्केट पे क्या वैल्यू करती है. बिकॉज प्रोडक्ट डिजाइन बहुत ज्यादा वास्ट फ्यूचर है. ठीक है, एज कम्पेयर टू अपने इंडिया पे और आउट ऑफ इंडिया में मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री पे. और लिटरली वो आपके एक डिजाइन के चार्ज कर सकते हैं, पर आवर चार्ज करते हैं, और यू कैन से एक पर डिजाइन चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 10 to 15,000. ये मिनिमम प्राइसेस से शुरू होते हैं प्रोडक्ट डिजाइन के चार्ज. ठीक है, और जितने ज्यादा उस पे रेंडर्स होंगे, जितने ज्यादा विजुअलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली वो उसके प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं. ठीक है, सो ये कुछ एक था, मैंने आपको एक रेफरेंस निकाला है कोई साइट पे मुझे ये मिला, जो प्रोडक्ट डिजाइन के जो कॉस्ट होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं. और डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉस्मेटिक है, मेडिकल है या और बाकी चीज है. अब मूव करते हैं फाइनल अपने जो है स्कोप ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इन द मार्केट. एज यू ऑल नो हमें सबको स्टार्टअप्स का बहुत नीड रहता है. लाइक हम जब कॉलेज से निकलते हैं, इंजीनियरिंग से निकलते हैं, हम बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स देखते हैं भाई कि हम स्टार्टअप्स करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली स्टार्टअप्स में अपन प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं कोई, तो हमें बहुत ज्यादा नीड होती है उस टाइम प्रोडक्ट डिजाइन की. बिकॉज उस टाइम हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर पाए तुरंत. अब वो फाइनल प्रोडक्ट हो बाय चांस मेरे पास वो वेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली मेरे मनी वेस्ट हो जाएंगे और टाइम भी जाएगा वहां पे. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका 3D विजुअलाइजेशन करता हूँ, पूरे के पूरे अपने रिसर्च वर्क निकाल लेता हूँ, एनालिसिस करके भाई मेरा प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, क्या उसकी कॉस्टेज होंगी, क्या वेस्ट मटेरियल होगा उस पे. ठीक है, और सारी चीजें निकालता हूँ. ठीक है, सो प्रोडक्ट डिजाइन आपकी स्टार्टअप्स में भी बहुत काम आता है. बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आज की डेट पे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन पे मूव कर चुकी है, सब विजुअलाइज करते हैं. लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बात करता हूँ, या क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज में बात करता हूँ, एजुकेशनल सेक्टर्स पे या मेडिकल सेक्टर्स पे, और इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, सब जगह प्रोडक्ट डिजाइन का बहुत ज्यादा डिमांड है. ठीक है, ओके, सो this was a demonstration of a product design visualization from my side. Okay, so आपकी जो भी queries हैं प्लीज चैट बॉक्स में जो होंगे वो पिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. ये एक फाइनल कॉम्प था मेरा, जो एक 3D मॉडल से 2D विजुअलाइजेशन थे, 3D विजुअलाइजेशन कैसा होता है, देन फाइनल कॉम्प कैसा होता है. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.